Jesus said और क्या आपको पता है यीशु मसीह ने in क्या John कहा? chapter 3? यूहन्ना उसके 3 अध्याय The में, wind blows wherever it pleases. You do not know where it comes from and where it is going. और जो हवा है वो अपना रुत के अनुसार, वो अपनी इच्छा अनुसार वो जहाँ को जाना चाहता है वहाँ जाता है। And once the string is cut, और अगर एक बार ये डोरी कट जाए you don't know where that kite is going to go. तो पता नहीं होता कि वो पतंग कहाँ चला जाएगा। Amen? आमीन। How many of you want the string to be cut? कितने लोग चाहते हैं कि वो रस्सी कट जाए? Lord, I want to just go with your spirit. परमेश्वर, हम आपकी आत्मा के अनुसार जाना चाहते हैं। It's a bit scary. और ये थोड़ा डरावना जरूर You है, don't know where that wind's going to take us. क्योंकि ये नहीं पता कि वो जो हवा है वो किधर लेके जाएगा। But it's also exciting. लेकिन ये बहुत ही प्रेरित करने वाला चीज है। And the Lord wants to move us by His Holy Spirit. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पवित्र आत्मा के माध्यम से आगे बढ़े। Amen. New things He has in store for us. और जो नई चीजें उसने हमारे लिए रखा है। As I was sharing with you earlier, that Pastor Joseph has declared that this would be the year of priesthood. और जैसे मैंने पहले ही बताया कि पासवान जोसेफ ने बताया, घोषित किया कि ये जो साल है ये राज प्रधारिकारी का है। And I was so excited about that because it just builds so nicely on our previous theme, the theme of Christ likeness, and now we are moving on one step ahead into the theme of priesthood. और ये काफ़ी अच्छा लगता है कि पिछले साल जो है वो मसीह समानता का साल था और इस साल जो है ये राज प्रधाकारी का है। Now that Christ likeness is established in our hearts, we know that we have received Christ likeness and we've got to walk in Christ likeness. और मसीह समानता जिसके बारे में पिछले साल बताया कि वो अभी हमारे हृदय में है और हमें पता है कि मसीह समान हमारा जीवन चरित्र होना चाहिए। The Lord is saying, I believe, that the whole purpose of this Christ likeness और परमेश्वर ये बता रहा है कि मसीह समानता में होने का जो मुख्य कारण ये है that we would become ministers. कि हम जो है वो एक सेवक बने। Hallelujah. हालेलुया। Every member a minister. और हर एक जन जो है वो सेवक है। And that's the heart of God. और वही परमेश्वर का हृदय है। And I want to share on that today. और आज मैं इसी विषय में बांटना चाहता हूँ That priesthood is really on the heart of God. कि राज प्रधाकारी जो है वो परमेश्वर का हृदय है। From the beginning, और आरंभ से लेकर when God made Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की, His idea was that Adam and Eve would be human beings, would be the people who could approach God and who could rule and reign on the earth. और उनका सोच ही ये था कि आदम और हवा वो परमेश्वर की बातों को समझे और सृष्टि पर वो राज करे। Before we go on, let's read our scripture that we'll be focusing on throughout this year, 1 Peter chapter 2. और वचन से निकालेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय। It's 4 to 10, but we're not going to read all of it. और 4 से 10वें आयत तक है, लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। Let me look at verse 4 and 5. It says, As you come to him, the living stone, rejected by men, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। Hallelujah. हालेलुया। Have you come to him? क्या आप उनके पास आए हैं? Yes. Have you come to Jesus? क्या आप यीशु के पास आए हैं? You know, I remember, like, in my life, I was like a dead stone. और मुझे अपने जीवन के बारे में ये पता है कि मैं एक मृतक, एक पत्थर के समान था। You know, I mean spiritually. और आत्मिक रीति से, Without hope, without God. बिना किसी आशा के, बिना किसी परमेश्वर के। I had no idea what would happen to me if I died. और मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे क्या होगा। I didn't know God. और मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। I grew up in a Christian home. हालांकि मैं एक मसीह परिवार में मेरी परवरिश हुई। I mean, a nominal Christian home. केवल एक नामधारी मसीही
आपके घर I में, knew about God. और मुझे परमेश्वर के बारे में पता था। I even knew that Jesus died on the cross for my sins. मुझे ये भी मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पे बलिदान दिया, But all was out there. लेकिन वो सब कुछ बस वहीं पे था। I was still a dead stone, और फिर भी मैं आत्मिक रीति से मरे हुए पत्थर के समान था, even though he was a living stone. और हालांकि वो एक जीवित पत्थर है। But it says here, as you come to him, लेकिन यहाँ ये कहता है कि जब हम उसके पास आते हैं, you know, the picture here I see is that anybody comes to Jesus, that living stone makes you into a living stone. और यहाँ एक जो चित्र मुझे नजर आता है कि कोई भी पत्थर जो है वो जब एक जीवित पत्थर के सामने आता है तो वो भी मानो उसमें जान आ जाती है। Hallelujah. हालेलुया। He has come that you may have life and have it abundantly. वो इसलिए आया है कि आपको एक जीवन मिल सके और एक बहुतायत की जीवन। And it says that as you come to him, the living stone, rejected by men, but chosen by God and precious to him. और ये कहता है कि जैसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, लेकिन परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। Hallelujah. Hold on to that this year. और इस साल इसी पे आप जटे रहे, Keep coming to Jesus. और बार बार परमेश्वर के पास आते रहे। He said, I've come that you may have life and have it abundantly. और वो ये कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ कि एक जीवन दे सकूं और एक बहुतायत का जीवन। He's the original living stone. और वही एकमात्र जीवित पत्थर है, You touch him, और जब आप उसका स्पर्श करते हैं you become a living stone. तब आप में एक जान आती है, Not rolling stones. ना ही लुढ़कता वो पत्थर। That was a band, Rolling Stones. Gathering no moss. Huh? You become a living stone. लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं एक जीवित पत्थर बनते हैं। Verse 5. और 5वां आयत, This living stone, तुम भी आप जीवित पत्थर हो, you and I, आप और हम, what it says here, we are not just a heap of living stones, और हम जो है वो केवल पत्थर के समान नहीं है, but we are an organized living stone being built together. लेकिन ये याजकों के समान है जो कि एक साथ निर्माण के लिए बनाए गए हैं, In a spiritual house. और आत्मिक घर के लिए। Hallelujah. हालेलुया। I believe what's being underscored here is there is a plan. और इसका अर्थ ये कि एक योजना है, There's purpose. और एक योजना है, There's order. और एक समानता में सब चीज चल There रही is है, structure. और वहां पे मानो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, And there's a place for you and I in this living house. और एक स्थान है जहां आपके और मेरे लिए एक स्थान है जो कि एक जीवित घर में है। Now sometimes, you know, we become Christians and we just think that, oh, I'm just one of the crowd. और कई बार हम जब मसीही जीवन में जीने लगते तो लगता है कि हम भी एक भीड़ में से एक है, I'm just, you know, I'm just a congregation. और हमें लगता है कि हम बस केवल एक भीड़ में एक कांग्रेगेशन के समान है। You know, and throughout Christendom over this 2000 years, there's been a degradation of the church where we divided the church people into clergy and laity. और पहले ऐसा हुआ था कि जो कलीसिया के लोग थे उसमें ही दो गुटों में बढ़ गए थे कि एक जो है वो कलीसिया के लोग होंगे और एक जो है वो सेवा वाले लोग होंगे। So the clergy wear the holy clothes and stand in the holy place, and the laity wear the ordinary clothes and sit in the ordinary place. और जो क्लर्जी होते हैं जो सेवकाई के लिए है वो केवल सामने आएंगे और वो अपने रीति से काम करेंगे, और बाकी सारे सदस्य जो है वो मानो केवल सदस्य की तरह ही वो बैठे रहते हैं। And this is really a horrible thing that's happened. और ये बहुत ही बुरी चीज हुई है। Almost like a class system or caste system came into the church. और हालांकि ऐसा लगता है कि मानो कोई क्लास या कास्ट सिस्टम या भेदभाव जो है वो कलीसिया में शुरू हुई है। And so some people went to college and they studied and they became the Brahmins of the church. And other people didn't go to the seminary, and they remained in the chairs. और बहुत सारे लोग जो है वो बाइबल कॉलेजेस गए और वहाँ पे जाकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और बहुत सारे लोग जो नहीं गए वो बस केवल कलीसिया में रह गए। But the scripture says, लेकिन यहाँ वचन कहता है, the purpose of the spiritual house और जो आत्मिक घर का जो निर्माण का योजना है is to be a holy priesthood. कि याजकों का एक पवित्र समाज बने। Hallelujah. हालेलुया। Every one of us हम में से हर एक जन to be a priest. याजक बनने के लिए बुलाए गए। You don't have to wear a backside collar. आपको जो है वो अलग से कोई वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं You don't है। have to wear funny clothes. आपको जो है वो
कोई मजाकिया कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। You don't have to have a long face and tie ropes around your waist. लंबा चेहरा या कोई रस्सी आपके कमर में बांधने की कोई जरूरत नहीं है। You can be in your funky jeans. लेकिन आप अपने जीन्स में भी रह सकते हैं। You can be in your crazy hairstyle. और आपने पागल वाले बालों के साथ भी रह सकते हैं। But you're still a priest. लेकिन उसके बावजूद भी आप याजक हैं। You don't have to, have REV written before your name. और आपके नाम के आगे कोई रेवरेंशिप की कोई जरूरत नहीं है। But you would still have to be revved up to serve God. उसके बावजूद भी आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। Can you please greet the priest next to you? क्या आप आपके बगल में जो याजक है उसे आप बुला सकते हैं? And don't call him reverend. और उसे रेवरेंड Just say, hello, holy priest. आप कहे कि हे पवित्र याजक। Hallelujah. हालेलुया। I feel so upset और मुझे सोच करके बहुत चिंतित होता हूँ that the church has been degraded. कि जो कलीसिया है उसको बहुत ही नीच स्थान मिला We है। degraded the members of the church. और कलीसिया के जो व्यक्ति है, जो सदस्य है, उनको काफी नीचे स्थान मिला We have sold you a lie. कि आपके जीवनों को बेच दिया गया है। We've told you that somehow, no, you're not a priest, you're an ordinary member. कि कई बार हमने आपसे झूठ कहा है कि आप जो एक साधारण से एक मनुष्य है, लेकिन आप नहीं हो। Don't presume that you can cross the line. आप ये ना सोचे कि आप एक जो लाइन है उससे आप पार करेंगे। You got to take off your shoes. This is holy ground. लेकिन आप जूते उतारे क्योंकि ये जो है पवित्र धरती है। You can't do this and you can't do that because that's meant for the priest to do. आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते क्योंकि वो केवल याजकों के लिए है। In New Life, we seek to break that down. लेकिन न्यू लाइफ की कलीसिया में हम ये सारे चीजों को हम तोड़ते हैं। Every one of you can do everything that I do. आप में से हर एक जन वो कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ। You can lead people to Christ. आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेके आ सकते हैं। You can baptize them in water. आप उनको पानी में बपतिस्मा दे सकते हैं। You can lay hands on the sick and they will recover. और आप बीमार व्यक्ति पे हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं और वो चंगाई को प्राप्त You can करेंगे। preach the gospel. और आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे। You can make disciples. और आप जो है वो चेले बनाएंगे। You can do all that the Bible says you और can do. आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो बाइबल बताती है कि आप कर सकते हैं। Because verse 5 says क्योंकि 5वां आयत कहता है that we are called to be a holy means set apart priesthood. और ये वचन कहता है कि हम याजकों के एक पवित्र समाज बनने के लिए बुलाए गए हैं। Offering spiritual sacrifices. और एक आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए। Aren't you happy about that? क्या आप इस सुन करके खुश हैं? We are not bringing in our goats and our sheep and birds and slaughtering them here. कि हम गाय बैल या कोई पक्षी ला करके यहाँ उनका बलिदान नहीं करते हैं। But every time we come together, लेकिन हर एक समय जब हम यहाँ आते we हैं have spiritual sacrifices. तो हम आत्मिक Hallelujah. बलिदान देते हैं। We are offering our bodies as spiritual sacrifices. हम अपने शरीर को आत्मिक बलिदान के रूप में We are offering the fruit of our lips, our praise and worship as sacrifices. और अपने शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर को आत्मिक बलिदान देते We हैं। bring our money, our tithes and offerings and we offer it as sacrifices. अपनी धन संपत्ति हमारा कमाई जो है आत्मिक बलिदान के रूप में हम परमेश्वर We को give our चढ़ाते हैं। life, our time, our energy and our ministry in praying for people. That is our spiritual sacrifice. हमारा जीवन, हमारा सेवकाई, हमारा हर एक चीज हम परमेश्वर को आत्मिक बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। All of us have got sacrifices. और हम में से हर एक जन जो है वो बलिदान चढ़ाता है। Let everything that has breath praise the और Lord. हर एक चीज जिसमें सांस है वो परमेश्वर की स्तुति करे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति It's not that he says you be a priest now, no sacrifices. वो ये नहीं कहता कि अगर आप याजक है तो कोई भी बलिदान नहीं देते हैं, He says spiritual sacrifices. लेकिन आत्मिक बलिदान। And why are they acceptable to God? और वो क्यों परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है? Through Jesus Christ. केवल प्रभु Hallelujah. यीशु मसीह के द्वारा। We come हालेलुया। boldly to the throne of grace. हम परमेश्वर के उस महिमा के सिंहासन के सामने हम आ सकते हैं। What boldness. और क्या ही ये बोल्डनेस के साथ है, What confidence. और एक कॉन्फिडेंस के साथ। How can we do that? और ये हम कैसे कर सकते हैं? Because of the blood of Jesus. केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Amen. Do you all know that today? क्या आप में से हर एक जन को ये पता है You're washed by the blood. कि आप परमेश्वर के लहू से You are धुले जा चुके हैं, cleansed by the blood.
आप उसके लहू से शुद्ध किए जा चुके हैं। All of you took part in the communion. और आप में से बहुत लोगों ने प्रभु भोज में शामिल लिया, You know the blood of Jesus क्योंकि आप प्रभु के लहू को जानते हैं has cleansed you of all कि unrighteousness. आपके हर एक उन बुरी बातों को साफ कर चुका You है, can run to Daddy God. कि आप पिता परमेश्वर के पास दौड़ सकते Say, हैं Abba, Papa, Father, Daddy, I love you. और आप कह सकते हैं कि अब्बा पिता हम आपसे प्रेम करते हैं। There is no gap between you and God. और आप और परमेश्वर में कोई भी गैप नहीं है, You're holy priest. क्योंकि आप एक याजक हैं You can approach God with confidence. और आप परमेश्वर के सामने एक हिम्मत के साथ जा सकते हैं Receive all that you need. और वो सारी चीजें जो आपको जरूरत है उससे प्राप्त करें Go out into the world और आप संसार में जाए and minister that to others. और वो औरों तक पहुंचाए। Hallelujah. हालेलूया। I'm just going to briefly share और कुछ और बातों को मैं बांटना चाहता हूँ this God's heart for everyone to be a priest. कि परमेश्वर का जो हृदय है वो हर एक जन के लिए एक याजक बनने के लिए बुलाया है। Can you turn with me to the book of Exodus? और आप निर्गमन की पुस्तक निकाल सकते हैं Exodus, second book of the Bible. और निर्गमन देखेंगे, The chapter right before the Ten Commandments, chapter 19. और उसका 19वां अध्याय। God is speaking here to Moses और यहाँ परमेश्वर जो है वो मूसा के द्वारा बात करता है and for the people. और वहाँ लोगों के लिए। Exodus chapter 19, और निर्गमन उसका 19वां अध्याय verse 5. और उसके 5वें आयत। God is saying, now if you obey me fully and keep my covenant, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे then out of all the nations you will be my treasured possession. और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों के राज और पवित्र जाति ठहरोगे। Does verse 6 sound a lot like 1 Peter? और क्या ही नहीं ये जो वचन है छठवा ये पहला पतरस में जो अभी हमने पढ़ा उसके समान है। Do you see where Peter is getting these ideas? क्या आपको पता चल रहा है कि जो पतरस है उसको ये सारा ज्ञान कहाँ से Now, प्राप्त हो रहा है? this is the heart of God. और यही परमेश्वर का हृदय है That his entire people, कि सारे लोग, all of Israel, कि सारा जो इस्राएल है all the 12 tribes और वो 12 गोत्र would be priests. और वो याजक है। He says, verse 6, you will be for me a kingdom of priests. और वो ये कहते हैं कि तुम मेरे लिए दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। A nation of priests. एक पूरा जाति। See, this has been God's plan. और यही परमेश्वर की योजना है। He chose Abraham, और उसने अब्राहम को चुना who had a son Isaac, और उसके बेटे आइसैक को, and then Jacob, उसके बाद याकूब को, and then 12 sons of Jacob, उसके बाद उसके 12 पुत्रों को, the house of Israel. और इस्राएल का जो घराना है। And he sent Joseph ahead. उसके बाद यूसुफ को आगे भेजता है। Now we're considering today this tragedy that's happened in our church. और ये जो घटना हमारे कलीसिया में घटी है I'm reminded of Joseph. और मुझे ये यूसुफ के बारे में स्मरण दिलाता है। You know, terrible thing happened to him. और उसके साथ बहुत ही खराब चीज होता है Disaster. और बहुत ही घनिष्ठ चीज। He was sold as a slave and sent far away from his father's house into Egypt. और वो सेवक के समान वो बेचा गया। You know what he says? और पता है वो क्या कहता है? Genesis 50 verse 20. और उत्पत्ति उसके 50 और 20वें आयत में When his brothers come back to him, जब उसके भाई उसके पास वापस आते he हैं says, you meant it for evil, but God will turn it around for good. कि तुम जो है वो बुरे के लिए बुरा चाहते थे लेकिन परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया। We've got to hold on to that. लेकिन हमें उसी पे निर्भर करना है God is a redeeming God. कि परमेश्वर जो है वो फिर से वापस लाता है He turns everything around for good. और वो आसपास की सारी बुरी चीजों को भलाई के लिए उत्पन्न करता है। Even if the greatest tragedy hits your life, भले ही कुछ भी आपके जीवन में बुरा हुआ हो, and God doesn't bring tragedies. लेकिन जो कि परमेश्वर इन सारी चीजों को नहीं लाता है। Tragedies come into this world because you and I and our first parents, we sinned. Sin came into the world, and with that tragedies, with that death, with that destruction, with that the greatest tragedies. बुरी चीजें जो वो परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन जो आपने और हमारे पूर्वजों ने पाप किया उसके कारण से वो आता है। And so
What Joseph is saying, लेकिन यहाँ यूसुफ जो कहता है the devil worked through you, my brothers. कि जो शैतान है वो आपके द्वारा कार्य किया है. You meant it for evil. You wanted me to be killed. You wanted me to be destroyed. You wanted me to be sent out from my father's house. कि तुम सारे लोग मिल करके मेरे विरुद्ध बुराई उत्पन्न करना चाहते थे You और were- पिता के घर से दूर करना चाहते You थे were jealous of me, और मुझसे जलन रखते थे. but God turned it around for good. लेकिन परमेश्वर ने उसको भलाई के लिए उत्पन्न किया. Does that mean there was no suffering for Joseph? तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि उसके लिए कोई भी सतावा नहीं था? All his life he was jumping around and dancing and singing hallelujah. पूरे जीवन भर वो आनंदित रहा और हालेलुया करके वो गीत गाता रहा. Imagine he went through tremendous suffering. और वचन के अनुसार वो बहुत ज्यादा सतावे से वो गुजरा है. He was a servant in Potiphar's house. और वो पोतीफर के घर में एक सेवक के समान He रहा. was imprisoned and put in jail. और वो वहां पे जेल में भी उसे डाला गया. But he never lost his faith in God. लेकिन पूरे समय कभी भी परमेश्वर से उसने अपनी आशा को नहीं छोड़ा. He held on to the promise. और वो अपने वचन पे ही टिका रहा. He held on to the vision. और जो दर्शन है उसमें वो टिका रहा. God, you're going to raise me up. कि परमेश्वर आप यकीनन मुझे यहाँ से उठाएंगे. God, you are for me. Who can prevail against कि me? परमेश्वर आप मेरे साथ हैं तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है. God, I thank you that in all things you're working together for my परमेश्वर good. आपको हम धन्यवाद देते हैं कि सारी चीजें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है. Hallelujah. हालेलुया. You got to get this in your heart. और ये सारी बातें हमारे हृदय में होनी चाहिए. Never ever get to a place of such despair that you think, God, you're not a good God. कभी भी ऐसे स्थान में नहीं पहुंचना चाहिए जहां पे हम इस बात को भी सोचे कि परमेश्वर तू कैसा भला परमेश्वर नहीं है. God is good. परमेश्वर निरंतर भला है. Yes. All the time. हमेशा यहाँ. And all the time. Amen. Remember what you've said. और याद रखे जो I आपने may कहा. remind you sometime और कई बार हम स्मरण दिलाएंगे आपको when you start crying. जब आप रोने लगे And say, oh, God is not good. He's not heard my prayer. कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, उसने मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना. God always hears our prayers. परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है. Sometimes the answers don't come at the right time. कई बार जो उसका उत्तर है वो सही समय पे नहीं आता. Sometimes we don't know why. और कई बार हमें नहीं मालूम होता कि क्यों ऐसा हो रहा है. God is always good. लेकिन परमेश्वर निरंतर भला है He loves us. और वो हमसे प्रेम करता है. And as Joseph said, और यूसुफ ने कहा things may happen for evil, और जो चीजें हैं वो भले ही दुष्ट को उत्पन्न करती है, but God works it out for good and for the saving of many lives. लेकिन परमेश्वर जो वो भलाई को उत्पन्न करता है और बहुतों के लिए. Hallelujah. Hallelujah. Are you seeing God's plan? क्या परमेश्वर की योजना को देख पा रहे हैं? He brings the whole family of Israel into Egypt. और वो पूरा जो मिस्र घराना है उसको वो वहां लेकर के आता है. And over 400 years, these 12 families, 12 tribes, they grow till they become about 2 million people. और ये जो 12 गोत्र है वो 400 साल तक वो एक ही स्थान पे रहते हैं जब वो बहुत बड़ी संख्या में जब तक ना होते हैं. And the Pharaoh means it for evil and he treats them as slaves, but God turns it around for good. और जो वहाँ फिरौन राजा था वो हमेशा उनके विरुद्ध कुछ करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे भी भलाई को उत्पन्न किया. The more he oppressed them, the more they grew. और वो जितना ज्यादा उन्हें दबाना चाहा उतना ज्यादा उनकी बढ़ोतरी हुई. Are they hearing in the government today? क्या वो आज के इस सरकारी बातों को सुन रहे हैं? Nehru said, don't oppress the Christians नेहरू ने कहा कि मसीहों को ना दबाओ or they'll grow. वरना वो बढ़ जाएंगे. Some of our people today have not heard that और हम में से शायद कई लोगों ने इस बात को नहीं सुना है and they are growing. और वो फिर भी बढ़ रहे हैं. Amen. 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 You see God's Amen. plan. और यहाँ परमेश्वर की योजना को He हम देखते brings हैं. out this great people out of Egypt. और यहाँ परमेश्वर जो है ये महान लोगों को मिस्र से बाहर निकालता They है. come to Mount Sinai. और वो सिनाई पर्वत के पास आते हैं. Moses goes up on the mountain for 40 days. और मूसा जो है वो 40 दिन तक उस पर्वत पर जाता है. He receives the 10 और commandments. वहां पे 10 आज्ञाओं को वो प्राप्त करता है. And God tells them, और परमेश्वर उनसे कहते हैं this is my heart. कि ये मेरा हृदय है. I want my people Israel to be a kingdom of priests and a holy nation. और मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा जो वंश है ये बुलाए गए चुने हुए में से है. Not one tribe to be priests. ना कि केवल एक गोत्र याजक बनने के लिए बुलाया गया. Not only the Levites. ना केवल लेवी जो है वो.
Not only the descendants of Aaron. ना केवल हारून के वंश से जो है, He's saying, Moses, ये कह रहे हैं मूसा, I want my whole people मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे जितने लोग हैं, पूरा to be a वंश, kingdom of priests. कि वो परमेश्वर के वो राज अधिकारी के ठहराए। Has God's heart changed? क्या परमेश्वर का हृदय वो बदला, Oh, the people's hearts became hard. या लोगों का हृदय और कठोर होता गया? The next chapter, chapter 20. उसके बाद वाला आयत जो कि 20वां अध्याय में, The people come to the mountain. और वहां पे जो लोग हैं वो पर्वत पर आते हैं। Exodus chapter 20, after the 10 commandments. और निर्गमन उसके 20वां अध्याय 10 आज्ञाओं के बाद, It says, verse 18. उसके 18वें आयत में, Can you look in your Bibles? क्या आप अपने बाइबलों में देख सकते हैं? We have some Bibles for sale if you don't have a Bible. और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो कुछ है यहाँ जो बिक्री की है, Or they are available for free on the internet in all your smartphones and tablets and every device possible. या इंटरनेट या जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे वो मुफ्त में है। Exodus chapter 20, verse 18. निर्गमन उसका 20वां अध्याय 18वां आयत, When the people saw the thunder and the lightning and heard the trumpet and the sound and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनकर और धुआं उठते हुए पर्वत को देखकर और देख के कांप कर वो दूर खड़े हो गए। Read verses 19 to 21. और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा और घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। You see what's happening? क्या आपने देखा यहाँ क्या हो रहा है? God wants all of them to approach him. कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन उसके सामने आए, The whole nation to be priests. कि पूरा जो वंश है वो सामने आए, Every tribe, हर एक गोत्र every member. और हर एक सदस्य, That the whole earth would be filled with the knowledge of God through his people Israel. कि पूरे सृष्टि जो है उसके समझ से भर जाए। But what happened? लेकिन होता क्या है? The people said no. कि लोगों ने कहा नहीं। No, 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 no. वो लोग यहाँ मना करने लगे Oh, we don't want to go to Bible college. कि हम जो है हम बाइबल कॉलेज नहीं जाएंगे, We don't want to be like those padris, that they are so poor. और हम उन पादरियों के समान नहीं बनना चाहते हैं जो उतना गरीब है, We don't want to wear funny clothes. और हम जो है वो मजाकिया वस्त्र नहीं पहनना चाहते हैं, We don't want to be so holy. और हम जो इतने पवित्र नहीं बनना चाहते हैं, We want to do our own thing. और हम अपने समझ से चीजों को करना चाहते हैं, It's too frightening. और ये बहुत ही डरावना है। Oh, there's so much smoke and there's lightning and thunder. और यहाँ कितना ही ज्यादा धुआं और बिजली नरसिंगा का शब्द है। Verse 19, they say to Moses, do not have God speak to us. और वहाँ लोग जो है वो मूसा से कहने लगे कि होने दे कि परमेश्वर हमसे बातें ना करे, Or we will die. वरना हम मर जाएंगे। I think they're aware of their sinfulness. तो यहाँ जो है उनको अपने पाप के बारे में पता चलता है। And Moses saying, God's only come to test you. He wants the fear, the holy, reverential fear of God to come upon you. और यहाँ मूसा लोगों से कहता है कि डरो नहीं, क्योंकि वो केवल परीक्षा करने के लिए आया है, To keep you from sinning. और एक भय जो हृदय में बने रहे ताकि पाप ना कर सके। But people say, no, we don't want. We don't want to hear God's voice. लेकिन लोग कहते हैं नहीं, हमें परमेश्वर का उस शब्द को नहीं सुनना है। Are you saying that today? क्या आप भी यही आज कह रहे हैं I don't want to seek after God. कि मैं परमेश्वर के पीछे नहीं देखना No, चाहता a हूँ? little bit is enough. I'll go to church. I'll stay far away. I'll be on the outside. I'll flirt around with the world. But Pastor, please don't ask me to do anything more. और क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि हम इसी लोगों के समान कि हम भले ही थोड़ा बहुत हम जानना चाहते हैं, केवल कलीसिया जाना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे पूरे रीति से परमेश्वर चाहता है वैसा हम नहीं रहना चाहते हैं? Is that where you are today? क्या आप ऐसे स्थिति में आज हैं? Somehow, you're flirting with your sin and you are like that scripture that says, catch for us those foxes, the little foxes that spoil the vine. और क्या आप उन लोगों के समान थोड़ा सा आप पाप में रहना चाहते हैं जो कि उन जानवरों के समान जो कि सारा का सारा खेत खराब कर दे?
And sometimes we say, oh, this, when the fox is small, he's so cute. Look at his eyes. Oh, he's such a fur ball. I want to keep him as a pet, but that little fox is going and destroying your life, your vine. और कई बार हम सोचते हैं कि ये जो है ये छोटा ही है और ये अपने ही स्थान पे है, लेकिन कई बार वो जो है वो आगे बढ़ करके अपने जीवन को ही वो नष्ट करता है. And it says here, verse 21, sad verse. It says, the people remained at a distance. और 21वां आयत जो कि इतना दुख है, वो ये कहते हैं कि लोग जो है वो दूर ही खड़े रहे. My question to us today, मेरा सवाल आपसे, are we going to draw near to God? कि क्या हम परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं Or we want to stay at a distance? या फिर हम दूर ही खड़े रहना चाहते हैं. The choice is ours. और जो चुनाव करना है वो आपका है. The priesthood is ours. और जो राज अधिकारी भी हम ही हैं. But we can be like the children of Israel. या फिर हम इस्राएल के जो संतान उसके समान बन सकते Say, हैं. Moses, मूसा ने कहा do not have God speak to us. कि होने दे कि परमेश्वर हमसे बात ना करे, I don't want to be, I don't want this holy priesthood. क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये पवित्र याजक हम बने. I don't want God to speak to me. हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमसे बातें करें. I don't want to draw near to God. मैं नहीं चाहता हूँ कि परमेश्वर के नजदीक और आगे बढ़ूं, I'll outsource my लेकिन मैं priesthood. कहीं और से ये कार्य करवाऊंगा. Yeah. We are in Gurgaon, right? Capital of outsourcing. हम गुड़गांव में है जहाँ बाहर का कार्य यहाँ होता है. God, I'll just let somebody else, my cell group leader, my pastor, somebody else, do my drawing near to you, and I'll just carry on the way I am. कि कई बार शायद ऐसा हम सोचते होंगे कि परमेश्वर जो मेरे जो अगुए हैं या जो पासवान है वही मुझे आगे ले जाएं, लेकिन मैं जहाँ वहीं रहूँगा. And they lost it. लेकिन वो यहाँ खो देते हैं. Priesthood was given to one tribe. याजक होने के लिए एक गोत्र को यहाँ बुलाया गया था. And it's almost like God saying, okay, Moses, I'll give it to your brother Aaron, and he and his sons only will be priests. लेकिन यहाँ ऐसा लगता है मूसा जो है वो परमेश्वर ने कहा कि जो हारून है और उसके वंश को ही केवल ये याजक बनने के लिए है. But God today is restoring that. लेकिन परमेश्वर जो है वो फिर से एक बार उसे अपने स्थान पे ला रहा है. Amen. आमीन. Are we here in New Life? We want to break down the clergy laity barrier. और हम यहाँ न्यू लाइफ की कलीसिया में ये जो केवल याजक वाले पद है उसे हम तोड़ना चाहते हैं. And throughout church history, there's been a debate: should we get rid of clergy or should we get rid of laity? लेकिन पूरी कलीसिया के इतिहास में हमेशा से ये एक सवाल रहा है कि किस चीज़ को हम हटाएं. Should we get rid of the priests, the priests in robes, or should we get rid of people in the pews? कि क्या हम जो याजक है हम उन लोगों को हटाएं या जो लोग हैं सामान्य लोग या उन्हें दूर करें. And the vote, I believe, should be get rid of laity. Get rid of this idea that ordinary church people don't have to minister. और मुझे लगता है कि जो सामान्य लोग सेवकाई नहीं कर सकते, इस सोच को हमें दूर करना है. So the challenge today, आज जो चुनौती हमारे सामने है, and I will be sharing on these three things. और इसमें से मैं 3 मुख्य बातों को बांटूंगा. If you want to move into this year of priesthood, कि आप अगर ये राज अधिकारी का इस साल में आप बढ़ना चाहते हैं, number one, you'll have to make a decision to move on to maturity. कि पहला आपको ये चुनाव करना होगा कि आप एक अलग स्तर में आगे बढ़े. Number two, और दूसरा बिंदु, you'll have to move into the role of servanthood. कि आप एक सेवकाई या एक सेवक के हृदय के साथ आप आगे बढ़े. I was excited today that we didn't have Pastor Sachin here. और मैं काफ़ी उत्साहित था कि यहाँ पे आज पासवान सचिन नहीं है. And so I had sent out, how many of you are getting my WhatsApp messages? You may be getting tired of them. और कितने लोगों को Okay. मेरा WhatsApp मैसेज आता है. But just please excuse me, that's the best way I've found to communicate with you. And if you're not on my WhatsApp group, then please come and tell me so I put you on the WhatsApp group. अगर कोई आप पासवान के अगर WhatsApp ग्रुप में नहीं है, अपना नंबर दे सकते हैं ताकि आपको भी जोड़ा दिया जाए. So I put out a message that, we need people to interpret, to translate. तो वहाँ पे आज ये डाला गया था कि हमें कुछ लोगों की आवश्यकता है जो कि अगुवाई कर सके, अनुवाद करें. I was excited. We got 2 people who volunteered, who are not here today, I think. और काफ़ी They प्रोत्साहन volunteered. करने क्या है कि 2 लोगों ने वॉलंटियर किया कि हम ये करेंगे. Yeah. They're out of town, they're coming. हालांकि वो शहर से बाहर है लेकिन आ रहे हैं. And I thought it was wonderful. और ये काफ़ी अनोखा है. Yes, sorry, one person not here, one is here. So
And also, I was excited today because there was one young man that I've been telling him for a long time, you need to come here early and you need to serve. और मैं एक और बात से उत्साहित हूँ कि एक व्यक्ति को, एक जवान को मैं कहता रहा कि तुम्हें थोड़ा पहले आना है कि यहाँ तुम सेवकाई कर सको. And my jaw almost hit the floor when I saw him here at 10:30. और मेरा मुंह खुला रह गया जब मैंने उसे 10:30 बजे यहाँ देखा. Now, I'm not saying that priesthood and servanthood is all about only serving on Sunday morning. और जो सेवकाई करना है, मैं केवल ये नहीं कहता हूँ कि केवल रविवार के सुबह यहाँ करना है. Church is 24/7. जो कलीसिया है वो 24 घंटे सातों दिन खुला है. So servanthood, and the third thing, जो सेवकाई करने आया है उसके बाद तीसरा जो बिंदु है if you want to get into this priesthood, कि अगर आप ये राज अधिकारी में आना says चाहते हैं, you got to say, I'm going to take responsibility. आप ये कहे कि मैं जिम्मेवारी को उठाऊंगा. You know, too many believers they basically have a badge on their head says, "Don't mess with me, pastor." और बहुत सारे मसीह लोगों को यहाँ माथा में लिखा रहता है कि मेरे साथ कोई बात ही ना करें, I'm a free agent. क्योंकि मैं एक आज़ाद एक एजेंट हूँ. I come when I like, I go when I like. और जब मुझे अच्छा लगता मैं केवल तब आऊँगा और जब अच्छा लगता तब मैं जाऊँगा. And as a pastor, you're almost scared to, you're walking on eggshells around them. Hello, praise the Lord, how are you? और पासवान होने के नाते कई बार डर भी लगता है कि केवल हम दूरी से ये करते हैं, बातें रखते हैं. It's like, touch me not. You get a, jhatka if you touch them. मानो ऐसा लगता है कि उस छुए ही ना. So, but if you want to grow in this priesthood, लेकिन अगर आप राज अधिकारी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते you हैं, will say, I'm open for correction. कि मैं तैयार हूँ कि मेरे अंदर सुधार हो सके. You know a sad thing? क्या आपको एक दुख बात पता है? Sometimes God speaks to me certain things to share with people. कई बार परमेश्वर जो है मुझे कोई बात देता है कि मैं लोगों के सामने जाके रख सकूं, But I don't have the permission to speak to them. लेकिन कई बार मुझे अनुमति नहीं मिलती कि मैं उनको ये बात बताऊं. There isn't that openness. Pastor, please, what God puts on your heart, share with me. क्योंकि कई बार लोग जो है इस बात के लिए तैयार ही नहीं रहते कि पासवान जो परमेश्वर ने आपको कहा है वो आप बताएं. Or if I share with them, और अगर मैं उनसे बता देता हूं they get all defensive. और वो जो है काफी But no, I'm not like that. वो काफी बुरा मान जाते, कहते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं. I'm very committed. मैं तो बहुत ही ज्यादा कमिटेड हूं. Yeah, I'm just a fool हाँ, हम तो बेवकूफ हैं who hears God, जो हम परमेश्वर की सुनते हैं tells me rubbish things to tell you. और वो सारी जो बातें वो कहता है आपको बताने के लिए. Can we get real? क्या हम सच्चाई को स्पर्श करें? Do we want to enter into this priesthood? कि क्या हम राज अधिकारी के एक जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते Be हैं? willing to hear some tough stuff. कि क्या हम कुछ कठिन बातों को भी सुनना चाहें? You don't like it? आपको अच्छा नहीं लगता? Tell God. फिर भी आप परमेश्वर को बताएं. Take it to God. वो परमेश्वर की ओर लेके जाए. Fast and pray and cry before Him. Say, why is this pastor telling me this stuff? उपवास रखे, प्रार्थना करे और रोए और बताए कि परमेश्वर क्यों ये पासवान मुझे ऐसी बातों को बताते हैं. God, I don't want to miss out. कि परमेश्वर आपकी कोई भी बातों को मैं छोड़ना नहीं This चाहता. is the vision. और ये दर्शन है What God was showing me, जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था that there's a tremendous advertising of the gospel going on in our country. कि सुसमाचार का फैलाना काफी तेज रीति से हो रहा है. Some of it is happening by the BJP, bring Jesus to power. और बीजेपी जो कि BJP. कि परमेश्वर यीशु मसीह का जो राज है उसको यहाँ लेके आए. And somehow suddenly everybody in the country is hearing about conversion. और बहुत सारे लोग जो है वो परिवर्तन के बारे में सुन रहे हैं. Before nobody knew. इससे पहले शायद लोगों को पता भी नहीं था. Now they're hearing how much it costs to convert one family. और अब तो लोगों को ये भी पता चल रहा है कि उसकी कीमत कितना कि एक परिवार को परिवर्तन किया And the जाए. whole country is wondering, what is this conversion? और ये पूरा देश इस वक्त सोच रहा है कि ये परिवर्तन क्या है. Should I also get converted? क्या मैं भी अपने आप को परिवर्तित कर लूं? And they're trying to catch the person who's doing all this conversion. और उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो ये सारा परिवर्तन कर रहे हैं. His name is the Holy Spirit. और उसका नाम है पवित्र आत्मा. They're not able to catch him. और उन्हें वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं. Unfortunately, some of us get caught लेकिन दुख की बात है कि हम में से बहुत सारे लोग पकड़ाए जा रहे हैं. because we are containers of the Holy Spirit. क्योंकि हम पवित्र आत्मा को समाने वालों में से हैं. No apologies for that. और उसमें कोई भी हमें दुख नहीं है. But there's an advertisement. लेकिन ये किस्म का एक प्रचार हो रहा है. People are getting to know. और लोग जो है वो इसके बारे में जान रहे हैं. And they're asking, why are Hindus in Bihar gathering every Sunday
to read the Bible and pray, and they're still Hindus, they are not Christians. और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों बिहार में कुछ लोग जो है वो हिंदू लोग होने के बावजूद भी वो एक साथ मिल करके बाइबल को पढ़ रहे हैं What is in this Bible? कि बाइबल में ऐसा क्या है I want to read it. कि मैं भी इसे पढ़ना चाहता हूँ. Okay, so all these people now, they start coming to Christ. तो ये सारे लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं. Who's going to look after them? तो उनको कौन उनकी देखरेख करेगा? One or two pastors? क्या एक या दो पासवान? Each and every one of you. आप में से हर एक जन, The priests that are sitting here. आप में से हर एक जन जो याजक यहाँ आज यहाँ मौजूद है, You like it or not? आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, You are the ministers. लेकिन आप जो है आप परमेश्वर के सेवक हैं You are the ones who are going to look after these people. और आप उन लोगों में से है जो इनकी देखरेख करेंगे. Rise up, servants of God.